Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the sign convention of concave and concave convex mirror. So let me discuss here. These are the sign convention. So this is concave mirror, and this is convex mirror. This is pore, this is focal point, and this is center. Okay. So all the values in left side, this is left side, and this is right side. So all the values in left side are negative, and in the right side will be positive. Okay. So here this is focal length, that will be negative. This is radius of curvature, that is negative in the concave mirror, and for the convex mirror focal length will be positive and radius of curvature also will be positive. Okay, you remember this. Object length is denoted by U, negative always, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इमेज लेंथ, ये डिनोट करते हैं बी से. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. सो इसलिए हमने इसमें क्वेश्चन मार्क रखा है. जैसी इमेज बनेगी वैसे ही होगा. सो दिस इज वी एंड एफ फॉर कॉनकेव नेगेटिव है, and for convex mirror that is positive. Okay, so this is the sign convention. And height हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, अगर अपवर्ड में है तो ये पॉजिटिव रहेगी और डाउनवर्ड में है तो ये निगेटिव रहेगी. सो ध्यान रखिएगा इस बात को कि हाइट जो है, हाइट अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगी, और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव होगी. और हाइट किसी भी तरफ भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है. तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, हाइट है, लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं. हाइट है तो अपवर्ड है तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव. ओके, सो दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर द concave and convex mirror. And now let me discuss here the ray diagram by the concave and convex mirror. So ray diagram, first one is by concave mirror and second one by convex mirror. Okay, so these are some specific conditions. Okay, so when any parallel ray of light falls on the concave mirror, then after reflection it will be passes from focal point. Means अगर कोई parallel ray of light concave mirror में fall करती है तो ये focal point से पास होगी. If any parallel ray of light falls on the concave mirror, then it will passes from focal point, or if it passes from focal point, then it will be parallel after reflection.
ओके, अगर फोकल पॉइंट से पास हो रही तो पैरेलल हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के रिवर्स रहेंगे। पैरेलल है तो फोकल पॉइंट से पास होगी, और फोकल पॉइंट से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। और अगर ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से पास हो रही है, देन इट गेट टर्न बैक ऑन द सेम पाथ। जस्ट यू रिमेंबर दिस, when any ray of light passes from center of curvature, then it get turned back in the same path after reflection. And here, whenever any ray of light passes from pole, then it get reflected with the same angle, means angle I equals to angle R. यानी पोल्स पर अगर फॉल कर रही कोई रे ऑफ लाइट तो उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, एंड नाउ फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, these are the specific conditions. Whenever any parallel ray of light falls on the convex mirror, then after reflection it fails to meet at F. अब यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है इस तरीके से जब रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो ए रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, तो ये डायरेक्ट एफ पर मीट नहीं करती, मींस इट फेल्स टू मीट एट एफ। सो व्हेनेवर एनी पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द convex mirror, then after reflection it fails to meet at F. And if this ray of light fails to pass from focal point, then after reflection it will be parallel. सिंपल, दोनों सिमिलर एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। पैरेलल है तो फोकल पॉइंट पर मीट करती हुई फील होगी, और फोकल पॉइंट पर मीट करती हुई फील हो रही है, आती हुई फील कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल। And if any ray of light fails to passes from center of curvature, if any ray of light fails to passes from C, then after reflection it get turned back in the same path. And if any ray of light passes from P, then it get reflected with the same angle. Angle I is equals to angle R. So now let me discuss here the image formation by concave and convex mirror. Image formation. So this is the concave mirror, and this is P, F, C, and this is infinite. So here there are different positions where we can put an object, and infinite, between infinite and C, at the C, between C and F, at F, and between F and P. So these are the some specific conditions at which any object to be placed. So let me discuss here. First condition, this PFC, object placed at infinite. Second condition, object placed between infinite and C. Third condition, PFC, object placed at the C. Next condition, PFC, object placed between C and F. Next, object placed at F, and this is the last one, object placed between F and P. So इन सब में एक चीज कॉमन है, और सबसे पहले वही करेंगे, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे चलेगी और फोकल पॉइंट से पास होगी, यही हमने रे डायग्राम में डिस्कस किया। सो सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे, पैरेलल रे और फोकल पॉइंट से पास कराएंगे ये। ओके,
सिंपल, इतना शो कर सकते हैं। इनफाइनाइट के केस में देखिएगा ऐसे रे ऑफ लाइट चलती है तो वो भी फोकल पॉइंट से, सो इट इज अ डायमेंस्ड इमेज मींस पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज, यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखिएगा, हमने ये रे डायग्राम में पढ़ा था, पैरेलल चलती है तो एफ से जाएगी, और अगर सी से पास होती है तो उसी ट्रैक पर कम बैक कर जाएगी। तो जहाँ पर ये रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट था तो ये इसकी इमेज हो जाएगी। ओके, तो इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट से कुछ स्मॉलर है, और रियल में ये रे ऑफ लाइट कट करें, डायरेक्टली कट करती हैं तो ये रियल इमेज होती है। अगर ये ऐसे कट कर रही हो डॉटेड डॉटेड मीन्स इस तरीके से, तो ये रियल नहीं होगी, कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो फिलहाल ये रियल इमेज है। सो इमेज इज रियल कॉमा स्मॉलर साइज, और कैसा है, सीधा है या उल्टा, उल्टी इमेज है, सो इन्वर्टेड, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन देखिएगा, जब पैरेलल चलती है तो फोकल पॉइंट से, फोकल पॉइंट से चलती है तो पैरेलल हो जाती है, और ये सी के नीचे ही इमेज बनाएगी इस तरीके से। तो सी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट सी पर ही इमेज बनती है, उसी के नीचे मीन्स इक्वल साइज की बनेगी, रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी एंड सेम साइज होगा, क्योंकि सी के नीचे ही बन रहा है, उतने ही साइज का इमेज फॉर्म होगा। अब आगे आते हैं, ये इस तरीके से है, तो सी से जो रे ऑफ लाइट चलेगी वो इस तरीके से कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये इसकी इमेज बनेगी। ओके, सो रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्ज साइज, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। क्लियर। इसी तरीके से जब यहाँ पर अब सी से रे ऑफ लाइट चलेगी ऐसे, तो उसी पाथ पर टर्न बैक करती हिट करने के बाद तो ये ऐसे चली जाएगी और ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मींस इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर इमेज फॉर्म करेगा। और इसके लिए अब ये जो सी से रे ऑफ लाइट चलेगी तो ऐसे कम बैक करेगा, तो ये अब पीछे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ही फैलती जाएंगी। तो इसको आगे जब इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। देखिएगा अब ये डायरेक्ट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कैसी है, डॉटेड लाइन है, तो ये रियल तो हुई नहीं इमेज, कैसी हुई, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। ओके, और जैसे ऑब्जेक्ट था स्ट्रेट वैसी ही इमेज बन रही है, मींस इरेक्ट है, अब इन्वर्टेड नहीं है एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। सो देखिएगा यहाँ पर इनफाइनाइट पर थे तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा, और बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी था तो रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर साइज है। सी पर है जस्ट सेम साइज, रियल इन्वर्टेड तो रहेगा। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, सो रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, बट लार्ज साइज होगा ऑब्जेक्ट से। और एट द एफ होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकल पर रखा ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इनफाइनाइट पर फॉर्म करता है, और एफ एंड पी के बीच में होगा तो अब रियल नहीं होगा, क्योंकि अब ये पीछे तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, आगे इंक्रीज करेंगे जब डॉटेड लाइन है, इट मींस दिस इमेज विल बी वर्चुअल एंड स्ट्रेट है, इट मींस इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट से कई गुना ज्यादा बड़ी है, इट मींस हाईली मैग्नीफाइड। ओके, एंड नाउ these are the images by concave mirror, and now let me discuss here the image formation by convex mirror. So this is the convex mirror, see. Okay, so here it may be object placed at infinite, or it also placed between infinite and p in this. So whenever this ray यानी ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर हो तो
तो ये कहाँ पर पैरेलल रे चलती है तो फोकल पॉइंट पर मीट करते हुए फील करते हैं, ऐसे होगा। सो दिस इज द डायमिनिश्ड इमेज, बहुत ही पॉइंट इमेज होगी जिसे बोलते हैं। तो ये होगा, और इनफाइनाइट और पी के बीच में हो, सो दिस इज द पैरेलल रे। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फील्स टू मीट एट एफ। दूसरी अगर सी पे मीट करती हुई फील हो तो उसी पाथ पर टर्न बाय कर जाती है, और पी से जो रे फॉल करती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको भी इंक्रीज करें तो ऐसे ये तीनों रे जहाँ पर मीट करेंगी ये होगी इसकी इमेज। ये था ऑब्जेक्ट और ये है इसकी इमेज। ओके, तो देखिएगा स्ट्रेट है तो इरेक्ट है, और डायरेक्टली नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डॉटेड लाइनें कट कर रहे हैं, इसलिए ये वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल साइज। ऐसा इमेज फॉर्म्ड होगा बाय कॉन्वेक्स मिरर।